یوز کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے کون سی کمپنی کی ہیں, تو اس سرکاری ملکیت کی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ کنٹرول کرتی ہے, جس کی وجہ سے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایکسٹرا اضافی ٹیلی کام اسپیکٹرم ہے, ضرورت نہیں ہے اس کی پاکستانیوں کو, تو اس کو سیل کر کے جو ہے وہ ملکی مفاد میں رکھا جائے. پتہ نہیں مجھے کیسے لگتا ہے کہ یہ ایک ایکسٹرا ہے. یہاں پر انٹرنیٹ کا سلسلہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کو پتا ہوگا کہ یہ کتنا جو ہے وہ فارغ ہے, مطلب کہ ایکسٹرا ہے, اور اس کو جو ہے وہ باہر جو ہے وہ نیلامی کے لیے جو وہ پیش کیا جا سکتا ہے. بہرحال جی, سیکنڈ اپنی نیوز کی طرف آ جاتے ہیں, اپڈیٹ کی طرف آ جاتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ فیس بک کی ایک مقبول ترین گیم رواں سال بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. فیس بک کی ایک بہت مشہور گیم ہے اور مشہور ترین گیم ہے, جس میں بہت ہی ویلے لوگ, میرا مطلب ہے کہ فارغ لوگ اور ایکسٹرا لوگ جن کا کوئی کام نہیں ہوتا, جن کو ویلے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اس کو بند کرنے کا جو فیصلہ کر لیا گیا کیونکہ ویلی دنیا زیادہ ہی ہو گئی تھی. تو جناب 11 سال سے زائد جو ہے عرصے سے یہ گیم فیس بک پہ موجود ہے, اور ایک زمانہ تھا جب 8 کروڑ سے زائد افراد اس میں فصلیں اگانے اور جانوروں کی پرورش میں مصروف رہتے تھے. اب جناب اس کا جو ہے وہ بک فرینڈز نے مدد کی, اس میں طلب کی ہے, لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اس میں جو یہ گاؤں کا سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں پودے اگانے, اس کی خوبصورتی اور اس کی جو ہے وہ کریٹیوٹی میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ جو ہے وہ کرتے تھے, تو اس گاؤں کی تزئین و آرائش بہت زیادہ ہو گئی ہے. گیم والوں کو لگتا ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے کہ اس میں مزید پودے جو ہے وہ گائے جائیں یا مزید جو ہے وہ کوئی اس طرح کی چیزیں جو کی جائیں. تو جناب گیم میں ان ایپ خریداری کی سہولت 17 نومبر تک دستیاب رہے گی, جس کے بعد گیم کا جو پیمنٹ سسٹم ہے وہ بند کر دیا جائے گا. اس کا جو پیمنٹ سسٹم ہے وہ بند ہو جائے گا. کمپنی کی جانب سے گیم میں مختلف سرگرمیوں کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے, تاہم اس کے مدعا اچھے طریقے سے گیم کو الوداع کہہ سکتے ہیں. تو جناب جو 11 سال سے گیم جو ہے وہ فیس بک کی زینت بنی ہوئی تھی, اب اس کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے, کیونکہ اس میں اتنا رش لگ گیا ہے کہ اب سارے ہی لوگ جو ہے وہ یہ گیم کھیلنا شروع ہو گئے ہیں. سب کو ہی گاؤں بنانے اور سجانے سنوارنے کا جو ہے وہ شوق ہو گیا ہے, تو اس کی وجہ سے گیم والوں نے یہ سوچا ہے کہ بس بہت ہو گیا ہے, اب کافی گاؤں بن گیا اور ہم نے کافی جو ہے وہ ڈیکوریشن کر لیا, اب اس کو بند کر دینا چاہیے. تو یہ جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ جلد اس کو موبائل پہ جاری کر دیا جائے گا, تو پھر جو ہے وہ کمپنی کے مطابق دیکھنا ہے کہ پھر وہاں پر جو ہے وہ اس کے کتنے صارفین اور یوز کرنے والے جو ہے یوزرز جو ہیں وہ موجود ہوں گے. بہرحال جی, ایک اپڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی اور آپ کو بتایا کہ فلیش گیمز کی سپورٹ 31 دسمبر 2020 کے بعد ختم کر دی جائے گی. تو یہ ہماری ایک اپڈیٹ جو آپ کے لیے تھی. اب کچھ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں انٹرسٹنگ نیوز کے حوالے سے. نیوز بول دیا میں نے, نیوز کے حوالے سے, ایسا بھی ہوتا ہے صبح صبح کے ٹائم. تو انٹرسٹنگ نیوز کی طرف چلتے ہیں جناب. جی, ٹوڈے انٹرسٹنگ نیوز میں ہمارے پاس کیا ہے؟ تو ٹوڈے انٹرسٹنگ نیوز میں آج ہمارے پاس بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز ہے. جب بھی آپ نے کبھی پلین کا سفر کیا ہے تو وہاں پر آپ کو بلایا جاتا ہے لیڈیز اینڈ جینٹل مین, اور یا پھر آپ کو بلایا جاتا ہے خواتین و حضرات اپنی بیلٹس جو ہے وہ باندھ لیں, ہماری جو ہے وہ فلائٹ تیار ہے. لیکن اب جاپان نے کیا کیا ہے؟ جاپان نے یہ کیا ہے کہ جاپانی ایئر لائن اب مہمانوں کو صنفی تفریق کے بغیر خوش آمدید کہے گی. یعنی لیڈیز اینڈ جینٹل مین نہیں پکارا جائے گا, بلکہ بغیر کسی صنفی تفریق کے کسی ایک صنف کو مخاطب جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. اس کے بغیر ہی جو ہے وہ جاپانی ایئر لائن جو ہے وہ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہے گی. اور بتاتے یہ ہیں, خبر رساں ادارے کے مطابق جو ہمارے پاس خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ جاپان ایئر لائن JAL نے 28 سپٹمبر کو اعلان کیا ہے کہ اب سفر کرنے والے مسافروں کو خوش آمدید خواتین و حضرات نہیں کہا جائے گا, بلکہ فضائی کمپنی کے ترجمان مارک نے کے مطابق مذکورہ جملے سے مسافروں کی صنفی تفریق کا جو ایک عمل ہے وہ کچھ اتنا زیادہ افیکٹو جو ہے وہ نہیں ہوا. تو اب ان کی کمپنی نے جینڈر نیوٹرل یعنی صنفی تفریق سے آزاد جملے استعمال کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے, اور کمپنی کے مطابق اب مسافروں کے سفر کا آغاز میں خوش آمدید خواتین و حضرات کی بجائے تمام مسافر متوجہ ہوں یا گڈ مارننگ مسافرین جیسے جملے استعمال کیے جائیں گے. ایئر لائن کے ترجمان کے مطابق کمپنی نے مسافروں کے درمیان عمر, جنس, قومیت, مذہب, نسل, رنگت کی تفریق کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. دیکھیے کیسی بات ہے, جو ہمیں اسلام کا پیغام ملتا ہے کہ ہم اس میں رنگ, نسل, قد, قامت سب چیزیں جو ہے وہ ہم اس سے جو ہے وہ آری ہو کے جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ انسانیت کا درس ہیں, ویسا ہی جاپان کا یہ ایک ایلیمنٹ کہ ہم نے اس میں اسپیسیفک کسی قوم, مذہب, قومیت یا کوئی خواتین و حضرات جیسے جملے نہیں استعمال کرنے, بلکہ سب ہمارے پیسنجرز ہیں اور ایسے ہی سب کو جو ہے وہ مخاطب جو ہے وہ کیا جائے گا. تو جاپانی ایئر لائن کی جانب سے مذکورہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ صنفی مساوات پر کام کرنے والے اداروں نے اعتراف کیا ہے کہ قدامت
قدامت پسند ملک جاپان ہم جنس اور مختلف حضرات کی اہمیت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی وجہ لوگ برا بھی منا جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ خواتین و حضرات اور اس طرح کے جو اسپیسیفک ہیں سب ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں ایک ٹائم میں. دوسری بھی صنفیں نازک ہوتی ہیں جو سفر کر رہی ہوتی ہیں، پھر ان کو بھی برا لگ جاتا ہے. اب وہ ان کو کس کیٹیگری میں ہم شمار کریں؟ تو ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا یہ تمام چیزیں کرنا، جس سے ان کے مسافر جو ہے وہ پریشان ہو رہے تھے، مائنڈ کر جاتے تھے. باہر کے ممالک میں ایک خاص بات ہے، انہیں جو بھی کوئی چیز بری لگتی ہے وہ منہ پر کہہ دیتے ہیں. ہم پاکستانیوں میں کیا پرابلم ہے کہ ہم منافقت کا شکار ہیں. ہمیں کوئی چیز بری لگتی ہے، ہم جا کے دوسرے بندے کو بتاتے ہیں، اس بندے کو نہیں بتاتے جس سے ہمیں جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے، اس کی پیٹ پیچھے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے جاپانی کمپنی جو ایئر لائن نے جو فیصلہ کیا وہ اسی لیے کیا ہے کہ ان کے مسافر ناراض ہو رہے تھے اور ان کو نہیں پسند تھا کہ انہیں اس طرح کہہ کے پکارا جائے، تو انہوں نے چینج کر دیا. اور ایسا چینج جو ہے وہ لانا چاہیے. فضائی کمپنیوں کے خواتین میزبان کی خصوصی ڈریس کوڈنگ ہوتی ہے، تاہم گزشتہ کچھ عرصے سے دنیا بھر میں جو ایئر ہوسٹس کے لباس ہیں ان میں نمایاں تبدیلیاں بھی دیکھی گئی ہیں. ایئر ہوسٹس کے جو ہے وہ اس میں لباس بھی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ کافی اس کا جو ہے وہ خیال رکھا گیا ہے. بہرحال جی دنیا کی ایسی ایئر لائن جاپانی ایئر لائن جو ہے وہ بن گئی ہے جو کہ قدامت پسند ممالک کے فضائی کمپنیوں میں بھی جو ہے اس کا شمار ہوتا ہے. اور خوش آمدید خواتین و حضرات کے جملے کو ختم کر کے مسافروں کو صنفی تفریق سے جو ہے وہ انہوں نے آزاد کر دیا. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی خبر جو ہم نے آپ کو دی ہے. حالانکہ فرق تو اس سے بھی کوئی نہیں پڑتا کہ اگر خواتین و حضرات کہیں تو کوئی اپنے آپ کو خواتین ہیں وہ خواتین سمجھ لیں جو حضرات ہیں، لیکن ایسا نہیں، انہوں نے یہ صنفی تفریق ختم کر دی ہے. تو یہ چلیں بڑی اچھی بات ہے. اس کے علاوہ جناب فرانس سے آپ کو بتاتے ہیں، فرانس سے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بے تحاشا جو ہے وہ ٹیٹوز بنوانے والے جو ٹیچرز ہیں ان کو پڑھانے سے روک دیا گیا ہے. بڑے لوگوں کو شوق ہے، یہاں پہ بھی بڑے لوگوں کو شوق ہے. ٹیٹوز بنوا لیں، ہاتھوں پہ بنوائے ہوئے ہیں، گردن پہ بنوائے ہوئے ہیں لوگوں نے ٹیٹوز، اور اتنے ٹیٹوز بنوائے ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے وہ یہاں پر مختلف جو ہمارے مالز ہیں پاکستان کے وہاں پہ بھی بڑے ٹیٹوز پینٹ کرنے والے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے، وہ باقاعدہ طور پہ آپ کو جو ہے وہ انڈیکیٹ بھی کرتے ہیں. اتنے سستے اب ٹیٹوز جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی عام آدمی بھی اپنے ہاتھ پر یا کہیں بھی بنا سکتا ہے. لیکن یہ بھی ہم جیسے لوگ اس کو جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر میں جو ہے وہ کنسلٹ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ہماری کنسلٹیشن یہی ہوتی ہے. ہم جب کسی کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اور اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ کیا ہے، اس نے پراپر طریقے سے کیسا گیٹ اپ کیا ہوا ہے. تو اس طرح کے جو ٹیٹوز بنوانے والے جو ٹیچرز ہیں ان کا پڑھانا جو ہے فرانس میں بالکل جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے کہ اس طرح سے وہاں فرانس میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھ رہی تھی اور ٹیچرز جو ہے وہ اس طرح کی شکل پہ پینٹ کر کے، باڈی پہ پینٹ کر کے اور اس طرح کی خطرناک شکلیں بنا کے جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے، جس کی وجہ سے بچوں پہ بہت برا جو ہے وہ امپیکٹ پڑ رہا تھا. تو فرانس میں جو ہے وہ بے تحاشا ٹیٹوز بنوانے والے ٹیچرز کو جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے اور اسکول کی جانب سے یہ فیصلہ والدین کی شکایت پہ کیا گیا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ان کا بچہ استاد سے خوف زدہ ہوتا ہے. بالکل مطلب یہ شکل اگر آپ دیکھیں تو اس سے جو ہے وہ خوفناک شکل جو ہے وہ کیا ہوگی. اور اس طرح کی شکلیں بنوانے والے آپ انہیں نیچرل تو نہیں کہہ سکتے، ظاہر ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہیں، وہ فزیکلی اور مینٹلی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں اور دوسروں کو خوف طاری کرنے کی جو ہے وہ دوسروں پہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو ڈس آرڈرز ہیں یہ ہمارے درمیان جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ والدین نے جو ہے وہ ٹیچرز سے مطلب جو اسکول کے عملہ ہے ان سے جو ہے وہ شکایت کی کہ اس طرح کے ٹیچرز کو جو ہے وہ آنے نہ دیا جائے جنہوں نے اتنے سارے ٹیٹوز بنوائے ہوئے، بچے خوف زدہ ہوتے ہیں. تو یہ فیصلہ جو ہے وہ اس لیے سامنے آیا ہے فرانس میں کہ جسم پہ جو یہ ٹیٹو بنوانے والے تقریباً بہت سے ایسے جو ہے وہ ٹیچرز ہیں جن کو بلاک کیا گیا ہے اور جن کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ اب جو ہے وہ ایجوکیشن اتھارٹی کے ترجمان نے جو ہے وہ خاص طور پر یہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے نوٹس کہ اور نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ کوئی بھی ایسا ٹیچر جس نے بے تحاشا ٹیٹوز بنوائے ہوں گے اپنے فیس پہ، اپنی باڈی پہ، وہ الاؤ نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے. اور جو ہے وہ یہ اسی طرح جو ہے وہ لوگ سیکھیں گے اور اسی طرح لوگ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ باز آئیں گے جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ ہم کہیں باہر جو ہے وہ نارمل لوگوں میں سروائیو کرنے کے جو ہے وہ لیول پہ نہیں ہے. ورنہ ایسے لوگ جو ہے وہ باہر نکل کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم، اور ایسے لوگ دوسروں پر جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ اپنا پریشر بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں. کیونکہ ایک تو ان کی خوفناک شکل جو پریزنٹیشن ہوتی ہے، دوسرے ان کے اندر کا وہ جو خوف پھیلا رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تیز ہوتا ہے امپیکٹ. بائیپولر ڈس آرڈر بھی اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور یہ ایسے قسم کا ڈس آرڈر ہے کہ جس میں اس انسان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کی جو ہے وہ ریاکٹ کر رہا ہے. وہ کبھی تولا، کبھی ماشا، اس طرح کی پرسنالٹیز جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ڈس آرڈرز ہیں یہ صرف ہم ہی سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی تو نہیں سمجھ سکتا، لیکن بہرحال جی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. اس کے علاوہ اب ہیلتھ کے حوالے سے ہم تھوڑی سی جو ہے وہ بات کر لیں کہ ہیلتھ جو ہے وہ ہمیں کیا کہتی ہے. لیکن یہاں پر ہم جو ہے وہ چلتے ہیں آج کی ٹوڈے ہیلتھ کی جانب.
जी, टुडे हेल्थ में आज मेरे पास क्या है? ज़ाहिर है कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छा और कोई ना कोई अच्छी खबर मैंने कहीं ना कहीं से निकाल के आपके लिए ज़रूर फैसला या कोई एक चीज़ जो है वो हम उसको नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया में जनाब मुहक्किकीन ने इस दवा से मॉलिक्यूल्स को नाक में स्प्रे की शक्ल में इस्तेमाल करने वाला इनहेलर टाइप एक ऐसा स्प्रे जो है वो निकाल लिया है जो कोविड को फैलने से रोक सकता है, क्योंकि जाहिर है ये नाक के जरिए, मुंह के जरिए और कान के जरिए जो है वो मुंतकिल होता है आपके जिस्म के अंदर। तो एक ऐसा स्प्रे है ये जिसको आप नाक में जो है वो स्प्रे कर सकते हैं और ये प्रॉपर तरीके से जो है वो काम करता है और कोविड जैसे जो एक खतरनाक किस्म का जो वायरस है उससे आपको जो है वो हिफाजत करता है। वैक्सीन के नतीजे में तो मुदाफती रद्द-ए-अमल, एंटीबॉडीज और टी सेल्स जो है वो किसी मखसूस जरासीम के खिलाफ मुतहरिक होते हैं, मगर कुदरती मुदाफी जो एक निज़ाम है वो उसकी मुत्तहिद इकसाम के जो जरासीमों हैं या जो आप उसको कह लें कि बैक्टीरियाज हैं वो उसके खिलाफ जो है वो काम करता है। और ये रिस्पेरिटी नामी बायोटेक कंपनी के माहिरीन की जानिब से स्प्रे पर काम जो है वो किया गया है और एक दिफाई ढाल की तरह जो है वो ये काम कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक स्प्रे अपना 051 से कुदरती मुदाफी निजाम मुतहरिक होता है जो वायरस को खुलियात के अंदर जो है वो उसकी दूसरी नकूल भी बना लेता है। तो इसकी वजह से इस इम्पैक्ट से छुटकारा हासिल करने के लिए, इस वायरस से छुटकारा हासिल करने के लिए एक ऐसा स्प्रे इजाद हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में इस पर जो है तहकीक हुई है बाकायदा तौर पर। महकीकीन का कहना है कि ये स्प्रे को जो है वो आप फेरियट नामी जानवरों के 3 ग्रुप्स के नाकों पे मुख्तलिफ मिकदार में इस्तेमाल करके देखा गया है। इसका रिजल्ट जो है वो लिया गया और हर ग्रुप में 6 फेरिट थे और एक चौथा ग्रुप भी था जिसे स्प्रे की बजाय जो है प्लेसेबो जो है वो दिया गया था। इसके 5 दिन बाद इन जानवरों को जब कोविड से मुतासर किया गया तो दरियाफ्त किया गया कि जिनको स्प्रे इस्तेमाल कराया गया था इनमें वायरल RNA या वायरस के जो इफेक्टिव जन्नियाती मवाद है उसकी मिकदार चौथे ग्रुप के मुकाबले में 96% कम रही थी। ये तजर्बा पहले जानवरों पे किया जाता है और ये कैसे किया गया ये मैं आपके साथ जो है वो थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो अब इंसानों पे इसकी आजमाइश जो है वो होनी है ताहम दरियाफ्त किया जा सके इसको कि इंसानों के लिए जो है वो ये कितना पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स देगा। तो जनाब माहिरीन के मुताबिक अपना जो एना 051 पे मुश्तमिल स्प्रे है वो हिफाजती इकदाम के साथ तैयार करते हुए उन्होंने इसको बाकायदा तौर पे इंसानों के लिए जो है वो यूजफुल जो है वो करार दे दिया है और खास तौर पे ऐसे अफराद के लिए जो कोविड के ज्यादा खतरात से दो चार हैं या जो है वो समझते हैं अगर ये स्प्रे पहले भी यूज करवा दिया जाए तो कोविड के असरात जो है वो 96 पॉइंट कम हो जाते हैं। तो अगर ये स्प्रे इतनी कामयाबी से लोगों में जो है वो हो गया और इससे कोविड से बचने में जो है मदद मिल गई तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में ये बहुत जल्द जो है वो अवेलेबल होगा और कोविड से जो है वो निजात जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा जनाब आज मेरी चाय नहीं आई है ना, इस वजह से मेरा इतना बोलने के बाद जो है वो गला जो है वो एकदम मेरा जो है वो इफेक्ट करता है। तो जनाब जो है वो हम चाय की तरफ भी जो है वो हम इंडिकेट करते हैं कि हमारी चाय भी पहुंचाई जाए, पानी भी पहुंचाया जाए और साथ ही हम जो है स्पोर्ट्स की तरफ भी चलते हैं। तो आज हमने देखना ये है कि हमारी टुडे स्पोर्ट्स में जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है। तो स्पोर्ट्स में क्या है जनाब, स्पोर्ट्स में ये है कि सऊदी अरब पहली मर्तबा खवातीन के लिए खेलों की इवेंट की मेजबानी करेगा। वाओ, इंटरेस्टिंग। सऊदी अरब जैसी कंट्री सबसे पहली दफा मतलब ये आप किसी भी अरब कंट्री के ये पहली दफा जो है वो हो रहा है कि पहली मर्तबा खवातीन के लिए खेलों के इवेंट की मेजबानी हो रही है सऊदी अरब की तरफ से। शहर जद्दा में नवंबर में खवातीन के लिए खेलों का इवेंट मुनक्किद होगा और सऊदिया में अपनी तर्ज का ये पहला टूर्नामेंट होगा। बहुत बड़ी और बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो खबर है और रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की मेजबानी में पहली मर्तबा खवातीन के लिए प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट रॉयल गिनीज एंड कंट्री क्लब जद्दा में होगा और सऊदी लेडीज इंटरनेशनल पहला लेडीज यूरोपियन टूर LET इवेंट होगा जो 12 नवंबर से 15 नवंबर तक जारी रहेगा और इसकी इनामी रकम $10 लाख होगी। जी हाँ, $10 लाख। और मजीद अगर हम इसकी जो है वो पढ़ें तो इसमें जनाब पहली मर्तबा खवातीन को जो है वो ताश के मुकाबलों में शिरकत की इजाजत होगी और सऊदी अरब में होने वाली इवेंट ब्रिटिश एंड स्कॉटिश ओपन के बाद दुनिया का तीसरा महंगा तरीन टूर्नामेंट होगा। रिपोर्ट के मुताबिक टूर्नामेंट इब्तदाई तौर पे मार्च में शेड्यूल था लेकिन कोविड-19 की बाइस इसको मुलतवी कर दिया गया था, लिहाजा अब दोबारा से जो है वो इसका आगाज हो रहा है नवंबर में और इस इवेंट के फौरी 17 नवंबर से 19 नवंबर तक सऊदी लेडीज टीम इंटरनेशनल ये जो है वो पूरा सेटअप होगा और जिसमें प्रोफेशनल टीम के साथ इमेचर भी शामिल होंगे और इसकी इनामी रकम $5 लाख होगी। सऊदी अरब इससे कबल 2019 और 20 में मर्दों के सऊदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट मुनक्किद करवा चुका है लेकिन खवातीन के लिए ये खुशखबरी है कि खवातीन का पहला टूर्नामेंट जो है वो सऊदी अरब से जो है वो आप बराह रास्त देखेंगे और तमाम जो है इंटरनेशनल लेवल पे खवातीन जो गेम्स खेलती हैं वो इस टूर्नामेंट का जो है वो हिस्सा बनेंगी और इसमें जो है वो खास तौर पर जो है
सऊदी हुकूमत के जो है मशकूर हैं कि उन्होंने जो है वो खवातीन के लिए जो है वो इतना सोचा, और अब तो वहाँ की खवातीन जो है वो हर चीज़ में, वहाँ सिनेमा भी खुल गए हैं, वहाँ और भी जो है वो मॉडलिंग के लिए भी और फैशन की दुनिया से भी वहाँ बड़ा काम हो रहा है। तो इसलिए सऊदी अरब पहली मरतबा खवातीन के लिए खेलों के इवेंट की मेज़बानी जो है वो करेगा, और ये एक बड़ी खबर जो हमने आपको दी। इसके अलावा जनाब चलते हैं शोबिस की तरफ। शोबिस में आज हमारे पास क्या है? टुडे मूवी, जी हाँ। जी जनाब, तो फिल्म जो है वो बड़े मजे की है, और फिल्म इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं उसको जो है वो गौर से पढ़ रही थी कि ये फिल्म जो है वो छोटे होते जो है वो ये फिल्म बहुत पहले आई थी, और इसके जो है वो कई लेटेस्ट जो है वो उसके बाद इसका कलरफुल वर्जन्स भी हमने जो है वो देखे। दी लायन किंग, एक दी लायन किंग मूवी थी जो बच्चों में बड़ी जो है वो मकबूल हुई। इसका जी सिक्वल बनाने का जो है वो ऐलान कर दिया गया है, और वॉल्ट डिज्नी ने 2019 की लाइव एक्शन रैम्पिक फिल्म दी लायन किंग का जो है वो मजीद आगे इसको जो है वो रिन्यू करने का जो है फैसला किया है। और जंगल के बादशाह शेर और इसकी बीवी शेरनी और इनके यहाँ पैदा होने वाले नए बच्चे सैम्बा के गिर्द घूमने वाली कहानी पर मबनी ये फिल्म दी लायन किंग जो है वो 1994 में रिलीज की गई थी, और दी लायन किंग इस जमाने में इतनी मकबूल हुई थी कि फिल्म इस जमाने में भी $1 अरब की कमाई कर गई थी। वाकई मैं वही कह रही हूँ कि दी लायन किंग जो है वो मुझे कुछ कुछ याद आ रही है, इसकी मैं फुटेज देखूंगी तो मुझे जो है वो अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ये शायद फिल्म जो है वो मैंने भी देखी हुई है बचपन में। हाँ बिल्कुल देखी हुई है, ये लाइन मुझे याद है, और ये मुझे याद आ गया है कि ये फिल्म जो है वो डिज्नी की सबसे बेस्ट मूवीज में से थी, और इसका बच्चा सैम्बा और ये लायन स्टोरी एक फैमिली स्टोरी जो है वो उस हवाले से, और फिर वो किस तरह से जो है वो बादशाह बनता है और किस तरह जो है वो सब चीज़ों से गुजरता है, और फिर ये तमाम चीज़ें थोड़ा थोड़ा मुझे रिमेंबर जो है वो आ गया है, मुझे याद आ गया है। तो जनाब राइटर्स के मुताबिक डिज्नी की 2019 की लाइव एक्शन फिल्म दी लायन किंग के स्क्वाइल के हिदायत ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हैरी जेंक्सन जो है वो होंगे, और नई फिल्म में भी 2019 की फिल्म में इस्तेमाल की गई फोटो रेलिस्टिक जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल किया गया है, जिससे सेक्वेल फिल्म में भी लाइव एक्शन की तरह जो है वो इसको दिखाई देगा। इसमें बहुत डिफरेंट किस्म की जो है वो उस वक्त भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, जिसमें इनकी वॉइसेस, इनके स्टाइल और ये तमाम चीजें जो है वो की गई थी, क्योंकि रियल उस तरह से जो है वो इम्पैक्ट देना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हिदायतकार बैरी जेंक्सन ने फिल्म की हिदायत के लिए ऐसे इंतखाब पर खुशी का इजहार किया है, और उन्होंने बयान जारी किया है कि वो मज़कूरा फिल्म को देखकर बहन और भाइयों के साथ बड़े हुए हैं, और बैरी जेंक्सन के मुताबिक वो जिस फिल्म को देखकर जवान हुए अब उसी फिल्म की हिदायत देंगे, और ये बात इनके लिए किसी एजाज से कम नहीं है। क्या बात है बैरी की कि जो इस वक्त जो है वाकई ये बहुत जो है वो छोटे होते जो है वो सब नहीं देखी हुई है, मतलब ये फिल्म कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा कि जिसने जो है वो ये फिल्म नहीं देखी होगी। अब तक के बच्चे भी दी लायन किंग जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि जो फिल्म एक दफा बन जाती है तो फिर वो तो जाहिर है उसके कलरफुल वर्जन्स जो है वो आते रहते हैं, उसमें तो वैरायटी जो है वो देते रहते हैं। इसके जो है वो उर्दू में, अरबिक में, चाइनीज में, इसके तर्जुमे के साथ भी जो है वो इस मूवी को जो है वो पेश किया गया। तो दी लायन किंग की पहली फिल्म जो है वो 1994 में रिलीज की गई थी। 1994 में मैं कितनी होंगी, और 2, 3, 4 क्लास में होंगी शायद, तो तब जो है वो ये फिल्म जो है वो देखी थी, अब मुझे सही तरह याद नहीं है। तो बहरहाल फिल्म की जो पहली कहानी है वो एक शेर और उसकी बीवी शेरनी और इसके पैदा होने वाले सैम्बा नामी बच्चे की गिर्द घूमती है, और 2019 में जारी की गई फिल्म में भी सैम्बा की पैदाइश को दिखाया गया है। इस ख्याल रहे कि सैम्बा को जवान होते बादशाह बनते भी दिखाया जाएगा, ताहम इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अच्छा जी, मतलब अभी इसको बादशाह बनते हुए नहीं दिखाया गया, अभी जो है वो इसको बादशाह बनते हुए दिखाया जाएगा। जो इसका नया स्क्वाइल आ रहा है उसमें जो है वो इसको बादशाह बनते हुए बच्चे को जो है वो दिखाया जाएगा, और इसके नए स्क्वाइल पे जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। और इसके हिदायतकार जो जारी हैं उन्होंने ये कहा है कि मैं ये फिल्म देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि मैं अब इसकी जो है वो डायरेक्शन करूंगा और ये खदमात जो है वो सर अंजाम दूंगा, तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी एक ब्रिलियंट जो है वो एक बात है। तो चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह से जो है वो आपको एक वाकई जो एक बचपन से चीज देखते आए और फिर आपको खुद से करने का मौका मिल रहा हो, तो वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज हो जाती है। जैसे अक्सर औकात जो है वो बचपन में बहुत छोटी होती थी तो टीवी पर जो है वो टेलीविजन में आने वाली खवातीन को देखती थी जो एंकरिंग करती थी, होस्टिंग करती थी, जो अब तक भी मॉर्निंग शो ही कर रही है माशाल्लाह, और वैसी की वैसी ही लगती हैं। आज भी उनको जो है वो देख लो तो वो आंटियां वैसी ही बैठी हैं, लेकिन ये है कि वो मैं बचपन से उनको देखती आ रही हूँ, और अगर मैं कभी जाकर उनको कह दूँ कि मैं बचपन से आपको देखती आ रही हूँ तो वो बड़ा गुस्सा कर जाती है 2-3 गुस्सा कर रही है। तो फिर जो है वो इस वजह से जो है वो अब भी
मॉर्निंग शो कर रही हैं, ये मैं आपको बता दूं, मुख्तलिफ चैनल्स पे मॉर्निंग शो कर रही हैं, जिनको मैं बचपन से जो है वो मैं एडमायर करती थी और मुझे वो एडमायर करती थी और मुझे जो है वो बड़ी अच्छी लगती थी, उनके बोलने का अंदाज जो है वो मुझे बहुत पसंद था। और मैं लेकिन मैंने खैर मैं किसी को कॉपी नहीं कर सकती, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं कॉपी करने की कोशिश भी करूँ तो मेरा अपना स्टाइल जो है वो आड़े आ जाता है, तो इस वजह से जो है वो मैंने कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं की। लेकिन हाँ, कोई अगर अच्छी बात, अच्छा स्टाइल या आंखों का स्टाइल या बातों का या हाथ हिलाने का स्टाइल जो है वो मैं ये जरूर लेने की जो है वो दूसरे लोगों से कोशिश करती हूँ कि कोई अच्छी चीज अगर मैं अपने पर्सनैलिटी में अडॉप्ट कर लूँ। तो इसी तरह ये फिल्म की बात है द लायन किंग की। तो द लायन किंग जो है वो इसीलिए जो है वो बहुत मशहूर मूवी जो है वो गई कि तमाम बच्चों ने इसको देखा, और अब भी आने वाली जो नई जनरेशन है इसके नए स्टाइल को जो है वो देखेंगी और फिर आप मुझे देख के बताइएगा कि आपको जो है वो कैसी लगी। तो ये बचपन की जो चीजें होती है ना, ये साथ साथ जो है वो आपके चल रही होती हैं और आपको जो है बड़ा इफेक्ट करती हैं। अब जरा मौसम की सूरत हाल की भी बात हो जाए, फिल्म की बात हो गई, स्पोर्ट्स की बात हो गई, कुछ इंटरेस्टिंग बात हो गई और चीजों की जो है वो बात हो गई, तो कुछ मौसम के हालात पे बात कर लें। लेकिन मौसम के हालात से पहले हमारे पास एक किताब भी है, तो हमारे पास जो किताब है हम पहले उस पर जो है वो बात कर लेते हैं कि जो है वो बुक हमारे पास जो है वो आज की कौन सी है। बुक हमारे पास जनाब, पहले चलते हैं टुडे बुक की तरफ जी। जी, तो टुडे बुक आज हमारे पास कौन सी है? बुक है हमारे पास हम सफर, और ये लिखी है फरहत इश्तियाक ने। तो जो हम मीडिया के हवाले से अगर बात करें कि जैसे मीडिया तरक्की कर रहा है और जो नावल या ड्रामे बनने का रुझान जो है वो नॉवल से ही ड्रामास जो है वो बने और वो बड़े सुपर डुपर हिट भी गए, तो ये भी एक ऐसी ही जो है वो आप ये कह लें कि हॉलीवुड में भी मुख्तलिफ नावलों पे जो है वो फिल्म बनाने का रुझान रहा, बॉलीवुड में भी रहा और लॉलीवुड में भी रहा। तो मशहूर फिल्में जो है वो इस पे बनी, जैसे हैरी पॉटर सीरीज, साइंस ऑफ द लैम्प, डी डाउंचनी, कोविड, इस तरह की जो है वो मूवीज जो है वो आई, और जो है वो ये चीजें जो है वो हमने इसको जो है वो कोट किया, और ये चीजें जो है वो हम सफर भी एक ऐसा ही नॉवल, आप इसको एक ऐसी किताब कह लें कि जिससे ड्रामा बना, और एक नॉवल की ही ड्रामाई तश्कील हुई, और रुझान पाकिस्तान में बनने वाले ड्रामों में इसमें जो है वो पाया जाता है। आजकल बनने वाले ड्रामों की अक्सरियत खवातीन डाइजेस्टों में छपने वाले नावलों पे मबनी है, क्योंकि खवातीन पे ज्यादा काम किया जाता है। इस तरह हम सफर जो एक ड्रामा है बना और आप लोगों ने जो उसको देखा, बड़ा पसंद किया। फरहत इश्तियाक का जो खवातीन के लिए छपने वाले डाइजेस्टों का वो मतलब जाने मानी जो है वो, आप उनको जो है वो फरहत को जो है वो कह सकते हैं कि लिखारी और बहुत अच्छा लिखने वाले। तो आपकी जो है वो कई फिल्में, कई ड्रामे जो हैं वो इस तरह से जो है उन्होंने लिखी, और उनकी कहानियों से जो है वो उसको उठाया गया, कहीं से मरकजी ख्याल उठाया गया, कहीं से किसी तरह ड्रामे जो बने। हम सफर के अलावा जो है वो कलम से निकले हुए दीगर नावलों में भी मताए जान और बिन रोए आंसू और इसके मुख्तलिफ जो है वो और भी वर्जन्स जो है वो शामिल हैं। लेकिन हम सफर एक ऐसा नॉवल कि जिसमें मोहब्बत भी, दुख भी, तकलीफ भी, अजियत भी, दर्द भी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम सफ़र में शामिल हैं। और एक हम सफ़र को होना कैसा चाहिए, एक हम सफ़र की ख्वाहिश करने वाली एक लड़की जो है उसको कैसा हम सफ़र चाहिए, या वो लड़का जो एक हम सफ़र की ख्वाहिश कर रहा है उसको कैसी लड़की चाहिए। इस नावल को जो है वो आप मोहब्बत से भरा हुआ या दर्द से भरा नावल भी कह सकते हैं, अगर दूसरे अल्फाज में आप इस्तेमाल करना चाहें तो हम सफर एक ऐसी किताब है कि जिसको जो लोग जरा थोड़े रोमानवी किस्म के लोग हैं वो इसको जरूर जो है वो पढ़ें, इससे जो है वो फैजियाब हो। आपको पता चलेगा कि हम सफर जो है वो जिंदगी में कितना जरूरी है, और हम सफर के बगैर जो है वो सफर जो है वो कितना अधूरा है। तो हम सफर जो एक किताब है, इसको पढ़ने के बाद जो है वो इंसान को बहुत से एहसासात भी होते हैं, और उसको ये फीलिंग भी आती है कि एक हम सफर के साथ चलने में कितनी कबाहतें भी होती हैं और कितनी राहतें भी होती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके उस हम सफर पे जो आपके साथ है। तो जनाब ये बुक जरूर पढ़िएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये बुक जो है वो आपको कैसी लगी। हम सफर एक बहुत खूबसूरत किताब है, ये ड्रामा भी बहुत सुपर डुपर हिट हुआ, और जो है वो इसके कैरेक्टर्स ने जो है वो इंसाफ भी किया इन तमाम कैरेक्टर्स के साथ। और हम सफर के बाद जो है वो फिर बहुत से सितारे जो है वो ऐसे सुपर डुपर हिट हुए कि वो आसमान की बुलंदियों पर आज तक जो है वो कायम है और लोग उनको पसंद करते हैं। कोई एक चीज होती है जो क्लिक कर जाती है और आप लोगों के दिलों पर जो है वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, और वो चीज जो होती है वो आपके अंदर का दर्द होता है जो आपकी आंखों से और आपकी बातों से आया होता है। तो इसी तरह हम सफर का ये नावल भी है। तो जनाब अब
بات تو ہو گئی یہ ہماری بک کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کہ ہم نے آج جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ آج کی ہماری کتاب وہ ضرور پڑھیے گا، اور محبت کرنے والوں کے نام ایک بہت خوبصورت پیغام ہم سفر۔ تو اب ذرا ہم آ جاتے ہیں، تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج کے ویدر اپڈیٹس ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ٹوڈے ویدر میں جناب ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اور جو معاملات ہیں وہ ذرا ہم آپ کو جو ہے وہ شیئرنگ کر لیتے ہیں آپ سے۔ ہوائیں چل جاتی ہیں جی میرے جو ہے وہ پیچھے، اور جو ہے مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ جی اب مجھے جو ہے وہ اسٹینڈنگ پوزیشن پہ آپ کو جو ہے وہ بتانا ہے کہ آج جو ہے وہ کس طرح کی صورتحال ہے، درجہ حرارت جو ہے وہ کتنا کہاں کہاں رہے گا۔ ایک درجہ حرارت ہوتا ہے موسم کا، ایک درجہ حرارت ہوتا ہے لوگوں کا، جو ہر وقت جو ہے وہ پارا چڑھا رہتا ہے۔ تو جناب آج لاہور کی طرف چلتے ہیں، سب سے پہلے درجہ حرارت کی لاہور کی بات کرتے ہیں۔ تو لاہور کا درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رہے گا 37 سینٹی گریڈ، اور کم سے کم درجہ حرارت رہے گا 27 سینٹی گریڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 40% رہے گا، اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 8 کلومیٹر۔ تو اس لحاظ سے اگر لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی دیکھیں تو 37 تک جائے گا، لیکن بہرحال تھوڑا سا جو ہے وہ گرم جو ہے وہ موسم رہے گا، اور کم سے کم بھی 27 پر رہے گا، یعنی 30 کے درمیان 30 تک جو ہے وہ 27 28 تک جو ہے وہ جائے گا۔ تو مطلب کہ نارمل موسم رہے گا، ہم اسے بہت پلیزنٹ موسم نہیں کہہ سکتے لاہور کا۔ تو اس کے علاوہ اور پھر ہوا کی رفتار فی گھنٹہ بھی جو ہے وہ کم ہے، 8 کلومیٹر ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم پشاور کی اپڈیٹ لے لیں کہ پشاور کے حوالے سے جو ہے آج کی محکمہ موسمیات نے ہمیں کیا اپڈیٹ دی ہے، تو اس حوالے سے جناب دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سینٹی گریڈ تک جائے گا، اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 23 سینٹی گریڈ تک جانا ہے۔ تو جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 30% تک رہے گا، اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 14 کلومیٹر۔ تو چلیں پشاور میں تو جو ہے وہ ہوا چلنے کے امکانات جو ہے وہ ذرا زیادہ ہیں، تو اس میں 35 سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ جائے گا، اور 23 سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ لاسٹ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ پشاور میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ بیلنسڈ ہی رہے گا، بٹ یہ ہے کہ گرم اور خشک موسم جو ہے اس کی تصدیق ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ شام کو کچھ پلیزنٹ موسم جو ہے وہ 23 سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ رہے گا پشاور میں۔ اسلام آباد چلتے ہیں جی۔ اسلام آباد کی سیر کے لیے تو ہم جاتے ہی رہتے ہیں، آپ کو سیر کرواتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہاں کے درجہ حرارت کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سینٹی گریڈ رہے گا، اور کم سے کم درجہ حرارت 24 سینٹی گریڈ رہے گا۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 37% رہے گا، اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 16 کلومیٹر۔ تو جناب یہ جو ہے وہ اسلام آباد کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا، یعنی لاہور میں 37 ہے، پشاور میں 35 ہے، اور اسلام آباد میں 34 ہے، یعنی ابھی کم سے کم جو ہے وہ اسلام آباد کا درجہ حرارت جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کی طرف اگر چلے جائیں تو کراچی میں ذرا کم ہو جاتا ہے جناب، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سینٹی گریڈ تک جاتا ہے، اور کم سے کم درجہ حرارت 28 تک جاتا ہے۔ تو ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے کراچی میں وہ 64% رہے گا، اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 19 کلومیٹر۔ تو چلیں یہاں پر جو ہے وہ ہوا چلتی رہے گی، اس لیے بہت زیادہ گرمی فیل نہیں ہوگی، کیونکہ کراچی والوں کی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی بڑے معاملات وہاں پہ خراب ہیں۔ 14 گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بہت سے علاقوں میں جو ہے وہ کراچی میں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت کا جو ہے وہ بیلنس رہنا بہت ضروری ہے۔ تو کراچی والوں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی آپ کا 33 سینٹی گریڈ، اور کم سے کم بھی 28 سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ جائے گا۔ تو یہ تو تھی جناب اپڈیٹ جو ہے وہ ہماری خاص طور پر موسم کے حوالے سے، کہ موسم جو ہے وہ اوور آل پاکستان کا اور 4 بڑے شہروں کا جو ہے وہ کیسا رہے گا، لاہور، پشاور، اسلام آباد اور کراچی کا۔ تو جناب یہ جو اپڈیٹ ہم نے آپ کو دی ہے، ہوپس ہو کہ آپ کو جو ہے وہ اس اپڈیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ پتہ چل گیا ہوگا، اور جن لوگوں نے جو ہے وہ جہاں جہاں جو ہے وہ جانا ہے، خاص طور پہ جو بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ سیر سپاٹے کے لیے جانا ہے، کسی نے اسلام آباد کا وزٹ کرنے جانا ہے، کہیں کراچی جانا ہے، پشاور جانا ہے، تو پہلے ہی ہم آپ کو ویدر اپڈیٹ دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو وہاں کے ویدر کا جو ہے وہ پتا ہو کہ جانے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ کون سے کپڑے اور کس طرح کی جو ہے وہ چیزیں جو ہے ساتھ رکھ کے لے کے جانی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت کتنا رہے گا، اور ہوا بھی چلتی رہے گی۔ نمی کا تناسب بھی آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ پراپر طریقے سے سمجھ سکیں کہ جی موسم جو ہے وہ پلیزنٹ رہے گا یا تھوڑا گرم یا خشک رہنے کے امکانات ہیں۔ تو اگر آپ باہر نکلیں تو آپ جو ہے وہ میرا خیال ہے ابھی چاروں ہی شہروں میں گرمی جو ہے وہ تھوڑی جو ہے وہ رہے گی بہت زیادہ، شام کے ٹائم تھوڑا سا پلیزنٹ موسم جو ہے وہ چاروں شہروں میں جو ہے وہ ہونے کے امکانات جو ہے وہ باقی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور مہنگائی جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے، بجلی گیس جو ہے وہ مہنگی کرنے کے امکانات جو ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں، تمام اپڈیٹس ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے آج جو ہے وہ بات بھی کرنی ہے اس حوالے سے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سے ٹاپکس بھی ہیں، آپ کو سیر بھی کروانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری گیسٹ پرسنالٹی ہمارے ساتھ ہوں گے جن کو ہم آپ جو جہاں میں موجود ہے، اور یہ مسجد بہاولپور سے 240 کلومیٹر اور رحیم یار خان سے تقریباً 55 کلومیٹر جو ہے دور واقع ہے۔ اپنے عمدہ ڈیزائن اور منفرد طرز تعمیر اور جدید نظر خطاطی کی وجہ سے اس مسجد کو خاص شہرت حاصل ہے۔ سردار رئیس غازی محمد نے یہ مسجد 1932 میں تعمیر کروائی، اور آپ
इसकी जो आप कह लें कि जिद्द अमजद जो हैं हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा में से आप जो है वो थी। रईस मोहम्मद गाजी एजादी मजिस्ट्रेट और बहावलपुर असम्बली के रुकन भी रहे, और इसके अलावा जो है वो कसीर मालो दौलत होने के बावजूद उन्होंने दरवेशाना जिंदगी गुजारी। दीनी तालीम का असूल, इबादत, रियाजत, समाजी कामों और मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद की तामीर और इनकी जिंदगी के हवाले से जो इनका मिशन रहा वो रईस गाजी मोहम्मद ने अपने खानदानी महल नुमा घर के करीब 1932 में भोंग मस्जिद की तामीर के लिए हिदायत और कसीर सरमाया फराहम किया। तामीर के एक एक मरहले पे उन्होंने जाती दिलचस्पी ली। अगर आप इसको देखिए तो ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर में कलरफुल मस्जिद है, इतनी खूबसूरत कि इसमें आपको हर रंग जो है वो नुमाया नजर आएगा। खुद उन्होंने इस मस्जिद की तामीर की निगरानी की मास्टर अब्दुल हमीद को मुकर्रर किया, और जिन्होंने निहायत मेहनत और तवज्जो से मस्जिद की तामीर की निगरानी की। मस्जिद की तामीर के लिए ऑस्ट्रेलिया, इटली और दीगर ममालिक से जो है वो संगे सुर्ख, संगे मरमर, संगे खारा, संगे सुरमई और संगे स्याह मंगवाए गए। जो आप पत्थर यहाँ पर लगे हुए जो है वो बज़ाहिर इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। इन पत्थरों को काटने और तराशने के लिए टाइलों पर फूल बनाने वाले, मीनाकारी और खताती करने वाले, संदल की लकड़ी पर बारीक नफीस काम करने वाले, गुलकारी करने वाले, ये तमाम लोग जो है बारीक और नफीस काम करने वाले तमाम लोगों की खिदमत जो है वो इसमें हासिल की गई। मस्जिद में 1932 से 1982 तक तकरीबन 50 साल में मुकम्मल इसको जो है वो किया गया। इन 50 सालों में हजारों कारीगरों ने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से और इंडिया से था। मस्जिद की तामीर के दौरान कई कारीगर उम्र रसीदा हो गए, कई इंतकाल कर गए। इनके बेटों और बास के पोतों ने ये जिम्मेदारी संभाली, और यूं 3 नस्लों से जो है वो जनाब ये मस्जिद तामीर जो है वो इसमें हिस्सा लिया गया, और कारीगरी जो है वो इसकी महारत जो है इसके तजर्बे की बुनियाद पर जो है वो आप देख सकते हैं। 50 सालों में कंप्लीट होने वाली ये खूबसूरत भोंग मस्जिद, जिसको जो है बड़ी खूबसूरती से इसका नक्शा बनाया गया, और बड़े ही जबरदस्त तरीके से रईस गाजी मोहम्मद के जहन में जो इसका नक्शा था उसी हिसाब से जो है वो इसको बनाया गया, और आज तक ये अपनी खूबसूरती जो है वो इसमें रखती है। और अगर आप कभी जाएं सादकाबाद जिला रहीम यार खान में जो गांव भोंग है, तो वहां पे आप इस मस्जिद को जो है वो जरूर देख कर आए, वहां पे जरूर जो है वो जाइए। और फिर जो है वो खास तौर पे जो है वो इस मस्जिद को गिराने के हवाले से भी बड़े जो है वो मामला जो है वो सामने आए। 20 फुट बुलंद एक इसका चबूतरा था, जिसको नए सिरे से मस्जिद की इमारत के लिए जो है वो दोबारा से तामीर किया गया, उसको गिरा भी दिया गया था। और ये क्योंकि बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और भोंग मस्जिद में एक वसी दारुल मुताला, मदरसा और हुजरा भी मौजूद है। और मस्जिद में दाखिल होने वाला मरकजी दरवाजा जो है मुशहद, जिसमें हजरत इमाम रजा के मजार के सदर दरवाजे जैसा ही अंदर जो है वो दरवाजा लगा हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत है अंदर से, ये मतलब क्या खूबसूरत इम्पैक्ट है, कलरफुल। और इसमें जो संगे मरमर है, संगे सुर्ख है, संगे सुरमई है, ये तमाम जो है वो बाहर से ऑस्ट्रेलिया से जो है वो मंगवाए गए, और यहाँ पर जो है वो स्पेशली जो है वो इनको लगाया गया। खवातीन की मसाजिद के हवाले से भी जुमे को भी जो यहाँ पर जो है वो स्पेशल जो दरस व तदरीस का जो है वो इंतजाम किया जाता है, और मस्जिद के बरामदे में तकरीबन 500 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत ही जबरदस्त मस्जिद है। और अगर आप जो है वो रहीम यार खान से जो है वो भोंग गांव की तरफ जाए तो वहां पे इसका जो है विजिट करके जरूर आए, क्योंकि बहुत कम लोगों को इस मस्जिद का पता है कि ये बहुत खूबसूरत है और फन्ने तामीर का एक शाहकार मस्जिद है भोंग मस्जिद। तो आप लोगों ने जरूर इसको विजिट करना है, और फिर मुझे जो है वो बताना है कि आपको जो है ये विजिट जो है वो कैसा लगा। वहां पर अगर आप अपनी जो है वो सेल्फीज और क्लिक्स लेकर जो है वो मुझे भेजना चाहें तो वो भी लाजमी जो है वो भेज सकते हैं। जो मैं आपको टूर विजिट करवाती हूँ, जहां जहां मैं आपको जो है वो लेके जाती हूँ, अगर वहां आप लोग जो है वो जाएं तो जनाब फिर आप लोगों ने मुझे वहां पर अपने क्लिक्स भी सेंड करने हैं। जी हाँ, बिल्कुल करने हैं, और आप करेंगे तो मैं उसको प्रोग्राम में शामिल भी करूंगी। तो अभी जनाब ये तो होगी आज की सैर। अब हम जरा कुछ मर्द हजरात के हवाले से भी जो है वो फैशन के हवाले से बात कर लें, शर्ट्स के हवाले से बात कर लें। तो कुछ ऐसी शर्ट्स अच्छी वाली जो है वो हमारे पास मौजूद हैं जेंट्स की कलेक्शन में, जो हम आपको दिखाएंगे, जो आप जो है वेयर कर सकते हैं। उनकी कलर, उनका डिज़ाइन, उनके स्टाइल, और उससे जो है वो आप मुस्तफीद हो सकते हैं। सिर्फ हम लेडीज़ के हवाले से ही नहीं फैशन को जो है वो दिखाते हैं, बल्कि जो है वो खास तौर पर हम जेंट्स की भी बात करते हैं। तो चले आए देखते हैं जी।
वैसे तो ये टुडे मेकअप लिखा हुआ है, लेकिन इस मेकअप के में हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमारा फैशन, हमारा स्टाइल और तमाम चीज़ें जो हम जेंट्स और लेडीज़ के लिए और बच्चों के लिए जो है वो इकट्ठा जो है वो करके आपको जो है वो बताते हैं। तो सबसे पहले जेंट्स कलेक्शन की तरफ चलते हैं कि आज हमारे पास जो है वो जेंट्स की शर्ट्स में जो है वो कौन सी ऐसी कलेक्शंस जो है वो मौजूद हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए जरा जी, तो ये है हमारी जेंट्स कलेक्शन। और आने वाले टाइम में ये जो मौसम आ रहा है ना, उसके लिए जो है वो ये बेस्ट है। थोड़ी सी ये लॉन्ग और जो है वो मिड स्लीव्स में है, तो ये एक अच्छा जो है वो ग्रेश और डार्क ग्रे और लाइट ग्रे का एक अच्छा सा जो है वो इम्पैक्ट है। और इसकी वी शेप में कुछ जो है इसका डिज़ाइन है, जो कि अक्सर लड़कियां भी जो है वो पहनती हैं, लेकिन आजकल लड़के और लड़कियां जो है वो मिक्स ही जो है वो डिज़ाइन जो है वो पहन लेते हैं। जैसे आज जो मैंने शर्ट पहनी है, ये कुछ कुछ लड़कों को भी जो है वो बड़ी पसंद होती है, संगे लड़के भी पहन लेते हैं, लड़कियां भी पहन लेती हैं। कुछ सी चीज़ें, कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो लड़के और लड़कियों दोनों में जो है वो सेम होते हैं। तो ये जो हम आपको मर्द हजरात की जो कुछ लॉन्ग शर्ट्स दिखा रहे हैं, जिनमें फुल स्लीव शर्ट्स जो है वो मौजूद हैं। अक्सर औकात लोग जो है वो स्ट्रेट पैंट्स के साथ जो है वो लॉन्ग शर्ट्स जो है वो वेयर करते हैं, और जेंट्स में खास तौर पे ये ग्रे, वाइट एंड कुछ पीच एंड पिंक सा जो है वो आप इसमें लॉन्ग स्लीव के साथ जो है वो ये इम्पैक्ट जो है वो देख सकते हैं। अच्छा लगता है, जबरदस्त लगता है, और आप जो है वो इस तरह के भी वेयर कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा आने वाले टाइम में जो है वो लॉन्ग स्लीव के साथ जो है ये बड़ा जबरदस्त जो है वो लगेगा। तो ये बड़ा जो है वो खूबसूरत एक इम्पैक्ट जो है वो देते हैं, और मिलता है कि जेंट्स जो है वो ऐसी कलेक्शन भी जो है वो पहन सकते हैं। बहुत कम लड़के जैसे पहनते हैं, थोड़ी सी जरा बड़ी उम्र के अगर आप जो है वो लोग देख लें कि 40 प्लस, तो 40 प्लस जो है वो इस तरह की भी अक्सर आपने उनको वेयरिंग करते हुए जो वो देखा है, फुल स्लीव्स के साथ जो है वो। इनको टी शर्ट्स भी बोलते हैं, शर्ट्स भी आप लॉन्ग शर्ट्स भी बोल सकते हैं, और लॉन्ग स्लीव शर्ट्स भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों ही नाम जो है वो इन शर्ट्स के हैं, और आप इस तरह की जो है वो वेयर कर सकते हैं। ये कलर्स जो है वो वेयर कर सकते हैं। मजीद कुछ कलेक्शन भी हमारे पास मौजूद है, वो भी हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे, और आपको जो है वो दिखाएंगे कि जो है वो मर्द हजरात के लिए खास तौर पर जो है वो ये बड़ी जबरदस्त एक जो है वो चीज़ है, जो आने वाले टाइम में, यानी कि थोड़ा सा मौसम के हिसाब से इसको पहना जाता है। इस गर्मी में बहुत ज्यादा आप इसको वेयर नहीं कर सकते, थोड़ा सा आने वाले टाइम में जो है वो आप इसको जो है वो वेयर कर सकते हैं। तो ये तो थी जेंट्स के हवाले से कुछ कलेक्शन जो हमने आपको जो है वो दिखाई और हमने आपके साथ जो है वो शेयर की। इसके अलावा जनाब हमारे पास जो है वो आज की कुछ रेसिपी वगैरह भी जो है वो मौजूद है, वो भी मुझे आपको जो है वो देनी है। तो रेसिपी के हवाले से भी जो है वो हमने आपसे बात करनी है, पकाना खाना क्या है, और उसके बाद फिर मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद जब हम वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर हमारे साथ गेस्ट होंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे, और फिर आपसे उनका जो है वो तारुफ भी जो है वो करवाऊंगी। तो आज चलते हैं, सबसे पहले जो है वो हमारा जो लास्ट सेगमेंट होता है वो आज है, क्योंकि हमारे गेस्ट होंगे अगले आधे घंटे में हमारे साथ, तो इसलिए हम अपना जो ये लास्ट सेगमेंट है अभी जो है वो आपको लिए पेश करते हैं, टुडे किचन। जनाब टुडे किचन में आज क्या है, खवातीन जो है वो बड़ी परेशान होती हैं कि डेली डेली क्या पकाना है। मैंने आपका मसला ही हल कर दिया हुआ है। डेली मैं आपको सुबह आके बता देती हूँ कि आज की आपकी डिश क्या होगी, और आप लोग जो मुझे कमेंट करते हैं फिर मुझे लिख के भेजते हैं, और अपनी डिश के साथ जो तस्वीरें भेज रहे हैं ना वो बड़ी फनी है और बहुत मजे की है। वो मैं सारी इकट्ठी कर रही हूँ इंशाल्लाह। जैसे ही मेरे पास जो एक थोड़ी सी जो है वो ज्यादा सारी पिक्चर्स इकट्ठी हो जाएंगी तो उसको प्रोग्राम में एक दिन जो है वो फिर हम दिखाएंगे भी आपकी पिक्चर्स को। और अगर आप भी अपनी डिश के साथ अपनी पिक्चर जो है वो हमें भेजना चाहते हैं तो अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ और अपने फोन नंबर के साथ जो है वो हमें भेज सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप अच्छे कुक होंगे और अच्छी कुकिंग करते होंगे तो हम आपको अपने शो में इनवाइट भी करेंगे, और साथ साथ आपकी जो है वो कुकिंग भी चेक करेंगे और आपसे पकवा के भी देखेंगे कि आप कैसा जो है वो पकाती हैं। तो जनाब आज की हमारी रेसिपी है तवा चिकन। मुझे बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद होगा, और आज आप लोगों ने तवा चिकन ही बनाना है। कैसे बनाना है रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। तवा चिकन की रेसिपी कागज पेंसिल हाथ में पकड़ लीजिए, अज्जा जो है वो आप नोट कर लीजिए। इसमें आपको बोनलेस चिकन चाहिए होगा, आधा किलो ले लें या 1 किलो ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। पानी इसमें जो है वो आप 1/4 कप जो है वो डालेंगे। इसमें पिसी हुई हरी मिर्च जो है वो 6 अदद डलेंगी, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, टमाटर के स्लाइस जो है वो 2 अदद चाहिए होंगे आपको, ज्वालन यानी अदरक 1 खाने का चम्मच चाहिए होगा, नमक 1 चाय का चम्मच, दही आपको इसमें 1 से हाफ ले लें या 1 से 2
कप जो है वो चाहिए होंगे, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, और जिसमें ज्वालिन हरी मिर्च जो है वो 3 अदद चाहिए होगी, कटी हुई मिर्च जो है, कुटी हुई काली मिर्च होती है वो भी आप जो हस्बे जायका ले सकते हैं, कुटी लाल मिर्च भी हस्बे जायका। और अब इसकी तरकीब हम आपको बताते चलें। तरकीब कुछ इस तरह से है कि तवे को आपने गर्म करके इसमें पानी, 6 अदद पिसी हरी मिर्च और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 अदद टमाटर स्लाइस और 1 से जो 2 हाफ टी स्पून होता है वो जो है बोनलेस चिकन जो है वो इसमें आपने जो लिया हुआ है वो डाल दें। अब फिर आपने इनको ढककर हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए आपने इनको पकने देना है। यानी ये खड़ा मसाला टाइप जो है वो आपने इसमें मिक्स करके और इसमें चिकन बोनलेस जो है वो डाल देना है और फिर जो है वो आपने इसको जो है वो पकने देना है, इसको दम पे रख देना है। अब जब आपने इसे दम पे रखना है तो आपने 1 चाय का चम्मच इसमें ऊपर नमक, कुटी हुई जो है वो जो आपने काली जो आपकी पिसी हुई मिर्च है वो, और इसकी जो है वो काली मिर्च के अलावा जो है इसमें जो 1 चमचा जो है ज्वालिन अदरक का और फिटी हुई दही का 1 चम्मच जो है कसूरी मेथी के साथ मिक्स करके जो है वो आपने क्या करना है कि ग्रेवी बनाने के लिए इसमें जो है वो मिक्स कर देना है। और जब वो ग्रेवी जो है वो आप देखेंगे थोड़ी सी जो है वो गाढ़ी हो रही है तो फिर आपने जो तेल छोड़ रही है यानी कि ऑयल छोड़ रही है तो फिर आपने आखिर में स्लाइस की जो जोई है हरी मिर्च से गार्निश करके जो है वो आपने सर्व करनी है। तो ये जनाब आज की रेसिपी है तवा चिकन। आप इसको तवा चिकन फ्राई भी कह सकते हैं क्योंकि आपने इसको पहले फ्राई किया ना, उसके बाद तवा चिकन फ्राई है। तो इसकी एक और चीज ऐड कर ले मेरी तरफ से, ये तवा चिकन फ्राई है क्योंकि मैं ये पहले बना चुकी हूँ डिश, तो ये तवा चिकन फ्राई ही है। और इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए इसमें जो आपने ग्रेवी मिक्स कर ली है इसलिए आप इसको तवा चिकन जो है वो कह सकते हैं। अगर आप इसमें ग्रेवी मिक्स नहीं करते तो ये तवा चिकन फ्राई भी बन सकता है। तो ये दोनों ही तरीकों से बनाकर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो है वो आज की रेसिपी जो है वो हमारी कैसी लगी है। अपने किचन में जो है वो आपने जाना है और जैसे ही मॉर्निंग शो खत्म होना है उसके बाद जाना है, अभी नहीं जाना क्योंकि अभी हमारा मॉर्निंग शो खत्म नहीं हुआ, अभी 11 बजे तक मेरा आपका साथ जो है वो बाकी है। तो अभी हमारे गेस्ट भी हैं जिनकी बात अच्छी और जो है वो सॉलिड बातें भी हमने जो है वो सुननी है और बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है, बड़ों के लिए भी काम किया है और जो है वो खवातीन के लिए बहुत काम किया है। मोटिवेशनल स्पीकर है, आप उन्हें कह लें कि वो एक ऐसे ट्रेनर हैं कि जो आपको बताते हैं कि आपकी शख्सियत में निखार कैसे आ सकता है। राइटर भी हैं और इसके अलावा जो है वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। वो मतलब अपने आप में बहुत कुछ करते हैं। सीएसएस के स्टूडेंट्स को भी जो है वो काउंसलिंग देते हैं, इसलिए एक आम आदमी की बात करना उनके लिए मुश्किल नहीं है। एक अच्छा बड़ा नाम है माशाल्लाह। और जो लोग पढ़ते हैं ट्रेनर भी हैं, हर तरह से वो लोगों को जो है वो मोटिवेट करते हैं। यानी एक इंसान की जिंदगी कैसे आसान हो सकती है, उनकी जिंदगी से जुड़ी हैं ये तमाम बातें। हमारे मुल्क के पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े बहुत अच्छे दानिश्वर हैं। फूल रिसाला आता था बच्चों का, उसके जो है वो राइटर भी और साथ वो फूल रिसाला उन्हीं की जो है वो शफकत से जो है वो परवान चढ़ा और उन्होंने ही जो है वो इसको तमाम जो है वो इसको बनाया संवारा और बच्चे जो है वो उसमें कहानियां भी लिखते थे। इनकी जो है प्रॉपर तरीके से उसकी जो है वो सजावट का काम भी जो है वो खुद से जो सरंजाम देते थे। इस वक्त में कम से कम भी उनकी जो है वो कम से कम 35 किताबें जो है वो तहरीर कर चुके हैं और ये किताबें जो है वो अब तक बड़ी ही तादाद में जो है वो छप चुकी हैं। उनकी नुमाया किताब जो है वो अदाब जिंदगी है जो बच्चों में भी और खास तौर पे जो है वो पेरेंट्स में भी बहुत ज्यादा जो है वो मशहूर है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर आप एक अच्छे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर को देखें जिनकी आप बहुत सी जो है वो आपको टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, सोशल मीडिया पे भी जो हमारी यंगस्टर्स हैं वो उनको जानते हैं क्योंकि उनके मोटिवेशनल बयान जो है वो हर जगह पर जो है वो मौजूद है और एक अच्छे से इंसान की क्या क्या पर्सनैलिटी में जो है वो चीजें होनी चाहिए वो तमाम चीजें वो बताते हैं। मैं बात कर रही हूँ द वेरी लेजेंड और बहुत ही जबरदस्त ट्रेनर, इसके अलावा काउंसलर और सेमिनार भी अगर आप इनके देखें तो बहुत से आपको जो है वो मिल जाएंगे। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं अख्तर अब्बास साहब। सबसे बड़ी बात वो बहुत अच्छे मुसन्निफ भी हैं, इतनी सारी किताबें लिखी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इतना आपका माशाल्लाह तारुफ और इतनी सारी चीजें एक शख्सियत में, ये कैसे स्टार्ट किया आपने और इन सब चीजों को कैसे सोचा, ये आपकी जिंदगी में कब शामिल हुई? अच्छा, वैसे तो फूल अकेला ही होता है ट्रेनिंग पे, हाँ। पर अब धीरे धीरे जब आप उसको अपने जात में जमा करते जाते हैं तो पूरा गुलदस्ता बन जाता है। अच्छा, हम चाहे तो कांटे जमा करते रहें, चाहे तो खुश्क पत्ते जमा कर लें, तो अपना चॉइस होता है। तो जिंदगी तो सबके पास ऑलमोस्ट उतनी होती है। क्या बात। उन लफ्जों को, उन जगहों को, उन तजर्बों को जिससे हम सीखते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं। सही। इनफैक्ट हमारी जिंदगी को वो हरा भरा करते हैं। सही। और जो थोड़ा फोकस्ड हो उनको ज्यादा फायदा रहता है। सर आपके सामने बात करना, अल्फाज का चुनाव करना
اب مجھ جیسی ابھی اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے وہ میں معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں اس حد تک شاید آپ کا نہ تو تعارف کروا سکوں کہ جو آپ ماشاءاللہ جو آپ کی پرسنالٹی ہے، جس طرح سے آپ نے کام کیا اپنی زندگی کے اتنے سال جو ہے آپ نے اس فیلڈ کو دیے. آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کتنا مشکل کام ہے. اگر ہم جو ہے سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں تو آپ کے بہت ساری جو ہے وہ موٹیویشنل چیزیں جو ہے وہ ہمیں وہاں پر ملتی ہیں. لوگ آپ کے جو ہے وہ اتنے فینز ہیں، آپ کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو یہ آپ کو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے؟ اچھا، میں آپ کو دل کی بات بتاؤں. ہاں. میں اپنے آپ کو کبھی بھی موٹیویشن اسپیکرز کی کیٹیگری میں نہیں رکھتے. مجھے لگتا ہے کہ میں لائف کوچ ہوں، اور چونکہ بہت پہلے جب بچوں کا فیلڈ تھا تو 13 سال میں نے پھول کیا. صحیح. اچھا، پھر میں ٹریننگ میں آیا تو 1,05,000 بچوں کی ٹریننگ کا مجھے موقع ملا. کشمیر کے تقریباً ہر اسکول کے جو بچے تھے، اچھا، تو ان کے لیے پھر کشمیر گورنمنٹ نے مجھ سے بکس لکھوائی. ان کو 5 لاکھ انہوں نے وہ شائع کر کے، بلکہ مذاق کیا کرتے تھے کہ ہمارے بچے صدر کا، وزیر اعظم کا نام تو شاید بھول جائیں، آپ کا نام تمہارا نہیں بھولیں گے، کیونکہ ہر گھر میں تمہاری 4 5 کتابیں ہیں. صحیح ہے. پھر میں یونیورسٹیز میں آیا تو ظاہر ہے ایم بی ایس کو پڑھاتا تھا. سی ایس ایس کو بھی آپ جو ہے وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. پچھلے 10-12 سال سے میں ان کا ایڈوائزر ہوں. بالکل. اچھا، اب پچھلے کئی سالوں سے مجھے لگا کہ جو فیملی کاؤنسلنگ ہے، چونکہ لوگوں کے اتنے دکھ ہیں اور بچیوں کا خاص طور پہ، ہمارے یہاں ویسے بھی بیٹیاں زیادہ ہیں، اور بیٹیوں کے معاملے میں چونکہ کاؤنسلنگ نہیں ہوتی تو ان کی زندگی کے 10-12 سال بالکل رل جاتے ہیں. صحیح. اور بیٹیوں کو تو باہر نکلنے کی ہمارے معاشرے میں اجازت نہیں ہے، اور جن کو ہے ان کو شاید کاؤنسلنگ لینے کی اجازت نہیں ہے. ان کو پوری ان کی اورینٹیشن نہیں ہوتی کیسے ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے، کتنی آپ کی حد ہے، کتنے میں آپ محفوظ رہیں. انفیکٹ باہر جانا ایک بالکل الگ چیز ہے. کام کرنا، پڑھنا، یہ سب کو اب چونکہ زندگی بہت اوپن ہو رہی ہے، ایسے میں آپ کو زیادہ کیئرفل ہونا ہے. بالکل صحیح. اس لیے کہ اگر آپ کی رسپیکٹ ڈیمیج ہو گئی تو پھر باقی بچتا کچھ نہیں ہے. آپ چاہے ٹاپ پہ چلے جائیں، بڑے بڑے آپ کے نمبرز آ جائیں، گریڈز اچھے آ جائیں، اندر سے آپ خوش نہیں ہو اور لوگ آپ کی رسپیکٹ نہیں کر رہے تو کیا فائدہ؟ انفیکٹ یہی لائف کوچنگ ہے. اچھا، پہلے ہمارے بڑے دادے دادیاں، نانے نانیاں کرتے تھے، ساتھ بٹھاتے تھے بچوں کو، سمجھاتے تھے، جوڑتے تھے کہ تم خاندان کی عزت ہو. صحیح. اچھا، اب ان کو خاندان کا علم نہیں ہے، چونکہ خاندان تو رہے نہیں. 2 مرلے 5 مرلے میں کیا خاندان ہوگا؟ تو ایک چھوٹا سا یونٹ ہے. تو یونٹ کے ساتھ بڑی عزت، بڑا رسپیکٹ کا تصور بھی نہیں ہے. تو جیسے زندگی بدلی، ہمیں تھوڑا بدلنا چاہیے تھا چیزوں کا. دیکھیں نا، اب ہم ہر وقت روٹی اگر نہیں کرتے تو اس کے 10 آپشن ہمارے پاس موجود ہیں. وقت کم ہوا، چیلنجز بڑھے. ابھی ان اداروں میں بھی بچیاں موجود ہیں جہاں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہی سب سے زیادہ روتی ہیں. سر آپ یہ بتائیے، اتنا کام کرنے کے بعد بھی آج آپ ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا دیکھتے ہیں؟ ہماری عورت آج بھی وہی مظلوم کی مظلوم ہے. آپ مصنف بھی ہیں، آپ نے اتنی کتابیں بھی لکھی. آج آپ ہمارے ڈراماز دیکھ لیں تو اس میں بھی عورت کو ایسا جو ہے مظلومیت کا جو ہے وہ پینٹ کر کے دکھایا جاتا ہے کہ سارا ظلم و ستم جو ہے وہ عورت پہ ہی ہو رہا ہے، مرد ہی قصوروار ہے، مردوں پہ کبھی کچھ نہیں ہوتا، یا کوئی ان کو تھریٹس نہیں ہوتے، ان کی کوئی فیلنگز نہیں ہوتی، یا وہ ہرٹ نہیں ہوتے. ایسا تو نہیں ہوتا. ظاہر ہے دونوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صنف نازک کو بھی اور مرد کو بھی جو ہے وہ برابر بنایا. دل تو دونوں کے سینے میں دھڑکتا ہے، دماغ تو دونوں کے پاس ہے. عورت کا زیادہ دھڑکتا ہے بلکہ بار بار دھڑکتا ہے. اچھا صحیح ہے. کل کسی ایک اداکارہ کا بیان تھا. اچھا. اس نے کہا میں صبح گھر سے نکلتی ہوں، ہر سیٹ پہ جا کے روتی ہوں، میرے پیسے مردوں سے کم ہیں.